All right, so great news. Dr. Parekh is with us right now from Ibn Sina Foundation Community Clinics. और डॉक्टर को हम ना सिर्फ ये कि वेलकम करेंगे, उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे. And again, this is your prime time to tune in. And if you have any questions, please feel free to send it to me via WhatsApp so I can ask the doctor who is on air live with us right now. Good morning, Dr. Parekh. How are you doing? I'm fine. Good morning. I'm very happy to be here with the radio, and let's see what you have for me. Yes, ma'am. Thank you so much for taking some time out today to speak with us. I would first like to know, would you be open to speak in Hindi, or English is your preferred language? Whichever language you prefer, I can speak English, Urdu, Gujarati. Oh, wow. That's the beauty of Ibn Sina Foundation Community Clinics. We have multilingual specialist doctors, team members there. So I would like to know, Dr. Parekh, please introduce yourself to our listeners, and also please explain what you do at Ibn Sina Community Clinics. Yes. My name is Kokila Parekh. I'm a retired gynecologist after many years, like 40 years. But Ibn Sina is the institution that I always respect, like to work. And I'm serving my voluntary service once, and right now it is once a week. I used to do more before, but every Tuesday I'm available at Wilcrest location. I'm a gynecologist consultation, and I serve all kind of a female problem related to the gynecology, like menstrual disorders, menopause, infertility, well woman checkup, pap smear, mammogram, breast examination, and anything related to the female, like pelvic pain and all these things. So it is available. It is very affordable price, and there is a state-of-art clinic that anybody can come, and will be happy to help them over there. डॉक्टर परीक, आई हैव सीन दिस कि एक सर्टेन एज के बाद जो हैं वो ख़वातीन, स्पेशली अगर वो बैक होम से आती हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म महसूस होती है ये कहने में कि उनको पेल्विक पेन्स हैं, या जो मेनोपॉजल इश्यूज़ राइज होते हैं इन हार्मोनल बैलेंसिंग में, वो उसका जिक्र नहीं करती और बस इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाती रहती है, या फिर रेगुलर मेमोग्राम्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं. आप क्या कहना चाहेंगे उन ख़वातीन से कि देखिए, ये जिस तरीके से आप फैमिली का ख्याल रखती हैं, उसी तरह आपको अपना भी ख्याल रखना है. Right. This is a very good question, very important question. And in our community, you are right. Sometimes they live in a combined family. एक दूसरे की मलाजो रखते हुए नहीं बोल सकते. You understand my Hindi, right? My Hindi may not be that great. बट शर्म आती है, सास बहू को नहीं बोल सकती, बहू सास को नहीं बोल सकती, रिस्पेक्ट के हिसाब से. तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट नो मैटर व्हाट यू एज यू आर, द बॉडी रिएक्ट एनी एज, एंड you should not neglect. Number one, you should go once a year, very regular checkup, make sure everything is okay. Especially the mammogram. मेमोग्राम ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं होता है, नहीं पेन होता है, नहीं हाथ से कूल फील होता है. कभी कभी पेशेंट आर्ग्यू भी करते हैं कि डॉक्टर कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, पेन नहीं है, कुछ फिर भी हर एक साल में एक बार मेमोग्राम कराओ, क्योंकि वी हैव सीन टाइम एंड अगेन वेरी बैड आउटकम, सरप्राइजिंग रिजल्ट ऑन ए रेगुलर वेल वुमन चेकअप. Yes. Early diagnosis is a cure. Early diagnosis, you will save from lot of aches and pains, और जो हैरानगति बोलते हैं, सफरिंग बोलते हैं, वो नहीं होगा. किसी को भी मालूम होते पहले आपको वो क्योर हो जाता है. तो प्लीज गो फॉर वंस अ ईयर रेगुलर मैमोग्राम, रेगुलर पैप स्मीयर एंड रेगुलर फीमेल चेक. आपका ब्लड टेस्ट देख लो, कहीं शुगर नहीं बढ़ रही, कहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा, जो हार्ट के लिए ठीक नहीं है, ब्रेन के लिए ठीक नहीं है, और ओवरऑल आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है. तो
साल में एक बार अपने लिए 1-2 घंटा निकालो और बिल्कुल रेगुलर चेकअप पे जाओ, तो बड़ा मसला आपका जिंदगी में फ्यूचर में होना थोड़ा कम है। डॉक्टर पारेख, आपने बहुत अच्छी बात की कि सास और बहू में भी इस किस्म की एक शर्म होती है कि वो डिस्कस नहीं कर पाते, जहाँ पे हम सास एक ख़ास एज पे पहुँचने के बाद जो है वो ख़वातीन समझती हैं कि उनको वो किस तरह डॉक्टर को दिखाएं या अपनी तकलीफ़ का कैसे जिक्र करें, अच्छा नहीं लगता, उम्र ऐसी है, ये है वो है। वहीं पे छोटी बच्चियाँ जो कि बड़ी हो रही होती हैं और उस एज में होती हैं कि जहाँ पे उनकी साइकिल भी स्टार्ट हो रही होती है, उसको भी लोग वेल वुमेन एग्ज़ाम्स में नहीं ला पाते क्योंकि वो ये बात को फेस नहीं करना चाहते कि मे बी उनके 18, 19, 20 ईयर ओल्ड लड़की को भी वेल वुमेन एग्जाम की जरूरत है। दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। 18, 19 नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि जब फर्स्ट पहला पीरियड शुरू होता है तो कभी कभी वो 12 साल में होता है, 13 साल में होता है, तो चलो सब पीरियड रेगुलर है, कुछ पेन नहीं है, तो कोई जल्दी नहीं है, मगर साल में एक बार उन लोगों को भी लाना जरूरी है, क्योंकि हम उसको एजुकेशन देते हैं कि पीरियड क्या चीज होती है। क्योंकि पहली बार जब पीरियड होता है तो बच्चियां घबरा जाती है, मुझे क्यों खून आया, समझ नहीं पाती, क्योंकि वो हमारे इसमें ओपन कम्युनिकेशन, एजुकेशन, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग नाउ कमिंग इन द नेक्स्ट couple of years नहीं है, और बिल्कुल घबरा जाती है। तो बेटर एजुकेशन, बेटर प्रोटेक्शन, हाउ दे शुड बिहेव, हाउ शुड दे कीप देमसेल्व्स सेफ, सो दैट एजुकेशन वी कॉल इट अ फिजिकल एजुकेशन, नॉर्मल साइकिल का एजुकेशन। नॉर्मल साइकिल का मीनिंग क्या है, हर एक महीने बिल्कुल 30 दिन पे आना जरूरी नहीं है, 4-5 दिन ऊंच नीच हो जाते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड इरेगुलर। बट एंड बेसिकली आज के जमाने में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज प्रोटेक्शन, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम बच्चियां बहुत अच्छी है, बहुत कल्चर है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाली, मगर आजकल का हालात के हिसाब से एजुकेशन होना जरूरी है। सेक्स एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं समझती हूँ छोटे बच्चे जब एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं या मिडिल स्कूल में जाते हैं और वो एक लेटर आता है स्कूल में, बहुत से पेरेंट्स उसको साइन नहीं करते कि नहीं इट्स टू अर्ली फॉर देम टू बी इंट्रोड्यूस टू सेक्स एजुकेशन। मैं ये समझती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। आप लोग जो हैं उनको बताइए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको उनकी बॉडी के बारे में बताइए कि किस तरीके से उनकी एनाटॉमी वर्क करती है और क्या उनके लिए सही है और किस तरह से उन्होंने फैसले करने हैं, क्योंकि ये चीज़ इन द लॉन्ग रन अगर आप छुपा कर रखेंगे तो हो सकता है कि उछल के सामने आए या और उभर के सामने आए। सो डॉक्टर पारेख, बहुत सी आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया, बहुत से फैमिलीज़ में बहुत प्रेशर होता है शादी के बाद लड़कियों पर कि भाई जल्दी से अब तुम लोग बच्चा कर लो, और उसके बाद अगर कुछ अरसे बच्चा नहीं हो पाता तो पहला चीज़ यही की जाती है कि भाई लड़की में कोई कमी होगी या क्या होगा सिलसिला, ठीक है। लेकिन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ बहुत कम लोग जो हैं वो एकदम से सोचना शुरू करते हैं आफ्टर नॉर्मल ट्राइंग फॉर अ ईयर और ओवर 2 years। आपको क्या लगता है कि अगर एक रेगुलर कपल एक नॉर्मल तरीके से कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, और कितने अरसे का थ्रेशोल्ड आप कहेंगे कि अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को रुजू करना चाहिए? हाँ, ये सब्जेक्ट तो मेरा बिल्कुल प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ माय प्रैक्टिस है, इनफर्टिलिटी, क्योंकि मैं बहुत देखा है कि पहला नंबर 1 पहले महीने ट्राई करते हैं और क्यों नहीं हुए। अरे भाई, समझाती हूँ कि पहले महीने थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रिलैक्सेशन दो, इट इज नॉट से स्विच ऑन एंड ऑन होता है। तो नंबर 1 इज टू रिलैक्स, कीप योर माइंड अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, टेंशन नहीं रखो, बिल्कुल थोड़ा टाइम दो। एवरीथिंग, बॉडी नीड अ टाइम, बॉडी नीड अ हीलिंग, बॉडी नीड टू जो क्या बोलते हैं कि ready for eggs to ripe, ready for conception. So every required a little time. हाँ, 1 साल कंटिन्यूअस एक्टिव ट्राई करने के बाद अगर नहीं हुआ तो यू डू नीड इवेल्युएशन कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं होने वाला है, थोड़ा एडजस्ट होना जरूरी है, थोड़ा मेडिसिन की जरूरत है, थोड़ा करेक्शन की जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होने वाला, मगर पहले दिन से टेंशन का भार लेके घूमते हो ना, दैट इज आई ऑलवेज आस्क माय इनफर्टिलिटी पेशेंट, नंबर 1 ट्रीटमेंट is forget that you want to get pregnant. Forget you want to get pregnant. That is my number 1 treatment. मैं वो डॉक्टर हूँ कि जो फैंसी प्रिस्क्रिप्शन के बाद प्रिस्क्रिप्शन नहीं देने वाली। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देने की वजह से पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि कुछ भी नहीं दिया डॉक्टर ने। अरे भाई, ये नेचुरल प्रोसेस है, हर एक में मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत होगी तो इवेल्युएशन के बाद रीजन निकलता है कि इसकी कमी है, इसको कोई वांधा है, तो फिर हम करेक्ट कर देंगे। मगर हर एक इनफर्टिलिटी कपल को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी में दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों की चेकअप जरूरत पड़ती है, दोनों को समझाने की जरूरत पड़ती है। तो ये पहला स्टेप जरूरी है, पहले दिन से टेंशन लेना नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस अप, बिकॉज ये एक अदर मिसकॉन्सेप्ट है और एक जिम्मेदारी समझ की औरत अपने ऊपर चलती है कि मुझे औलाद देनी ही देनी है, ये मेरे ऊपर है सारा प्रेशर। सो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। डॉक्टर पारिक, जब प्री मेनोपॉजल ख़वातीन होती हैं वो एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं और वो उन सिम्टम्स को नहीं देख पाती कि जो सिम्टम्स उनकी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो उस कनेक्शन को नहीं समझ पाती हैं जो ब्रेन में चेंजेस होना पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एंड बिफोर यू नो इट दे हैव गेन टन्स एंड टन्स ऑफ वेट, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, और इस किस्म की चीज़ें जिस पे वो परेशान होती हैं और उसके बाद वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गेट योर हार्मोन्स इन बैलेंस? Okay, the menopause is a very important stage of every female life. Everybody go through the menopause and pre-menopause stage. Nobody excuse for that. Only thing, some people has a very quiet menopause. मतलब कि कुछ भी नहीं होता है, माहवारी बंद हो जाती है, अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी लेते हैं। कई लोगों को मेनोपॉज में हार्मोन का केमिकल इम्बैलेंस इतना होता है कि हैरान, जैसे बहुत हैरान हो जाते हैं। हैरान हो जाते हैं मतलब कि आपने बताया कि मूड स्विंग्स हो जाता है, कोई भी रीजन के सिवाय क्राइम स्पेल होता है, कोई भी रीजन से सिवाय चिड़चिड़ापन होता है, कोई भी रीजन के सिवाय थकावट होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, लीव मी अलोन काइंड ऑफ ये होता है। दैट इज अ लिटिल अनोइंग सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉजल लेडी। वी शुड बी वेरी सिंपैथेटिक टू दैट पेशेंट। आई मीन वी मीन्स फैमिली। फैमिली हैज टू अंडरस्टैंड। कभी कभी फैमिली, घर वाले, हस्बैंड की सास के, बहन के, जो भी घर में है, बोलते हैं कि वो अभी बदल गई है, उसका स्वभाव बहुत खराब हो गया है। नहीं, इसका स्वभाव नहीं खराब हो गया है, वो बदलती नहीं गई है, उसके बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए आपको लगता है कि वो बदल गई है। मगर वर्क विथ हर, कोऑपरेट विथ हर, उसको थोड़ा डेलिकेट वे से समझा के रखो, प्यार से रखो। मेन थिंग इज अटेंशन एंड लव। You don't need medicine, and I am a doctor. I don't give a hormone treatment for a menopause. It is a natural event of the body, female life, and it will pass through it. It is not going to stay forever. बस जो 6 महीना 12 महीना चलता है उसमें काफी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन चेंज हो जाता है, कभी कभी ड्राफ्टिंग रिलेशन ब्रेकअप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। तो सबूर करो, अपने आप से कंट्रोल करो, फैमिली वालों बिल्कुल उसको कोऑपरेट करो और इट विल गो अवे। हाँ, थोड़ी कोई पेशेंट को जरूरत पड़ती है, हमारे पास आती है इवेल्युएशन के बाद, मगर मैं बोलती हूँ कि हर एक पेशेंट को हार्मोन ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि भाई चलो 50 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, मेनोपॉज है, हमको मालूम है। अगर यू गोइंग थ्रू दैट स्टेज, मगर पेपर पे एस्टैब्लिश कर देता कि हाँ आप मेनोपॉज में है, मगर सिम्टम्स का क्या? सिम्टम्स तो काम डाउन करना है ना।
तो वो सिम्टम्स कैसे काम डाउन करके उसका काउंसलिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका टेंशन लेके पढ़ना, टेंशन से ज्यादा तकलीफ होती है। तो बोलो कि मैं कल ठीक हो जाऊंगी, 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगी, अपने आप से मेंटल प्रिपरेशन करो कि ये नेचुरल स्टेज है लाइफ का, फीमेल लाइफ का। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी ऑल फीमेल go through menstrual pain, we all female go through labor pain, we all female go through we go through so pain. many things in our lives. और सबसे खूबसूरत बात आपने ये की कि वो बदल गई है। डॉक्टर पारिक, देयर इज वन क्वेश्चन जो कि मैं ज़रूर आखिर में पूछना चाहूँगी, और वो है रिगार्डिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बहुत से लोग समझते हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद, अरे तुम ये किस बात की उदासी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत बच्चा दे दिया है, इतना हेल्थी है, तुम किस बात के लिए इतनी उदास बैठी हो, उफ़ो। दे डोंट अंडरस्टैंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी कुछ बोलिए। हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज नॉट कॉमन। हर एक 10 मदर में कभी कभी 1-2 को हो जाता है। और वो जो बोलता है ना कि दिल की हल्की हुई चीज कुछ ज्यादा ले नहीं सकते जी। कभी कभी ज्यादा खुशी भी दे सकती है ये वक्त, कभी कभी जिम्मेदारी अपने पर आ गई है, बच्चा मुझे रेज करना है, मेरे पर जिम्मेदारी आ गई, एक तरह का प्रेशर मदर फील करती है। जो अच्छी मदर है, जो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती है, वो मदर को थोड़ा ज्यादा हिट हो जाता है। अरे भाई, बच्चा आया है, अपनी लाइफ लेके आया है, सब खुदा कर देंगे, बच्चा दिया है तो वो भी करेंगे, मगर टेंशन से मत करो, बिल्कुल आसानी से करो। अपने बच्चे पे भी बहुत जबरदस्ती नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा सबसे दुनिया का पहला डिसिप्लिन वाला बच्चा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर अपने दिल पे जो लगाते हैं जिम्मेदारी, और we as a physician we sometimes we don't find a reason. Yes, patient go through depression. At that stage again it is a very delicate stage. We as a doctor and family role is very important. Yes. कोई एक के बाद एक डिप्रेशन की दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दवाई की असर एडिक्शन कर देते हैं, बिल्कुल जिंदगी भर कभी कभी लेनी पड़ती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जितना हो सके इतना मेडिसिन काउंसलिंग करिए। यस, काउंसलिंग करो, अपने मन को समझाओ कि मैं आई विल बी ऑल राइट। से 10 times to your body, anybody in the morning. सब लोग प्रेयर करते होंगे सुबह में, जिसके सारे दिन में एक बार, तो एक में एक भी बोलो कि बस just keep me safe and I will be all right. Absolutely. I can handle. I can do it. Absolutely. Positive attitude of the life will win any situation. I am such a... Yes, go ahead, doctor. Yes. Yeah. Totally. I'm such a firm believer in therapy and counseling, and मुझे इस बात की भी खुशी है कि इब्न सीना जो है वो भी ऑफर करते हैं। आपकी इतनी खूबसूरत सर्विसेज के साथ इब्न सीना फाउंडेशन क्लिनिक्स की और स्पेशलिस्टीज़ जो हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड और सर्विसेज के साथ ये कम्युनिटी की खिदमत के लिए हाजिर है। थैंक यू डॉक्टर सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम टुडे एंड टॉकिंग टू अस। Thank you very much. I would like to say a couple of things about the clinic. Yes. Anything we are there to help the people. No matter who you are and no matter what is the problem. If we cannot help you, we can guide you what to do, where to go, everything. And also, I want to appreciate you as talking with me right now. You really asked me good questions which covers basically all the female issues and common questions. I really enjoyed talking with you. Thank you, doctor, so much, and you have a lovely, lovely day. Thank you so much. Yeah. Thank you. That was Dr. Parik, all the way from Ibn Sina Foundation Community Clinics. Thank you once again, everyone, for tuning in, and thank you for listening to the interview. I hope कि आप लोगों को इस इंटरव्यू को सुनकर जो है वो काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला होगा और काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में भी आई होंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, reach out to Ibn Sina Foundation Community Clinics.